Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had explained and completed Unit 9, Nouns, Possessions. We have already completed Unit 10, that is verbs, transitive and intransitive. Students, I'm sure all of you must have completed Unit 9 and 10 in your English grammar. Now children, today I'm going to start with Unit 11 of your English grammar book, that is simple present tense. So all of you, please take out your English grammar book and turn to page number 47 as I'll be starting with Unit 11. Children, please take out your English grammar book, turn to page number 47 as I'll be starting with Unit 11, simple present tense. Now students, you know that simple present tense is used to talk about the things in general that happen all the time. Usually, regularly, generally, often, seldom, always, never, etc. जो हमेशा एक्शंस होते हैं वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं. जो एक्शंस हम रेगुलरली करते हैं, कभी कभी करते हैं, हमेशा करते हैं, कभी नहीं करते, वो सब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस परमानेंट ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड मेनी प्रोवर्ब्स. जितने भी प्रोवर्ब्स हैं, परमानेंट ट्रुथ हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, वो हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं. नाउ इफ यू लुक एट page number 47, there is a paragraph given on penguins. Fine. Now please look into the paragraph, page 47, as I read and explain. Penguins are the birds with black and white feathers and a funny waddle. They spend maximum time of their life under water. Mother penguin lays 1 or 2 eggs in a nest. Mother and father both work as responsible parents and take turns warming the eggs. The eggs hatch in a few weeks. Penguins live only in southern hemisphere. There are about 17 kinds of penguins. So students, if you see in the first line of the paragraph, it is written, penguins are the birds with black and white feathers and a funny waddle. In this sentence, R is underlined. So is MR. We use these helping verbs in present tense. You need to keep this in mind. Then children, the most important thing to understand in simple present tense is the subject-verb agreement. What is that? If your subject, I'm sure all of you now know the subject. Subject is the person or thing whom we are talking about, or the person or thing who is doing the action. That is the subject in a sentence. So, if our subject is singular, we need to add S or ES to the verb in simple present tense. Whereas, if our subject is plural, we simply need to write the root form of the verb. ये आपको ध्यान देना है. Now, if you look at the second sentence, it is written, they spend maximum, this is the second sentence. Now, look at this first two words. इसमें क्या है? They subject है, spend क्या है? वर्ब है. अब हम सबको पता है कि we, they, you, है ना, ये सब प्लूरल प्रोनाउंस है. फाइन. जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है अगर प्लूरल है तो हम हमेशा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. हमने जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न किए हैं यूनिट 10 में, उसमें जो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हम यूज करेंगे इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल. इट कैन बी ईदर प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल नाउन.
तो सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आप हमेशा वर्ब का कौन सा रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. यू विल ऑलवेज यूज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फाइन. सो दे के साथ स्पेंड क्यों है? ठीक है. अगर दे की जगह ही होता सपोज, तो हम क्या करते? ही स्पेंड्स, एस लगाते वर्ब में. यहां अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा जो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग, हम उसमें या तो एस या ई एस, या अगर वाई एन से वर्ब अगर वाई से एंड कर रहा है, सो वी वुड हैव रिमूव द वाई एंड वी वुड हैव ऐड आई एस, है ना. तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है. अगर ये समझ में आ गया तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. नाउ लुक एट the next line. Mother penguin lays. Next line में बेटा क्या लिखा है? Mother penguin lays one or two eggs. ठीक है. अब यहां पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मदर पेंगुइन. तो जो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसमें हमने एस लगाया है. क्यों एस लगाया है? क्योंकि ये मदर पेंगुइन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है ना. सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट है. सो जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, है ना, तो हम हमेशा क्या करेंगे? जो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसमें हम एस ई एस लगाएंगे. क्लियर? ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसको समझना जरूरी है. नाउ इफ यू लुक एट द लास्ट फोर्थ लाइन, द एग्स हैच, उसमें एक्स देखो, द एग सब्जेक्ट है, एग्स में एस लगा है, तो हमने हैच यहाँ पे रूट फॉर्म में एज इट इज लिखा है. उसके बाद अगर आप लास्ट थर्ड लाइन में देखोगे, पेंगुइन्स लिव, पेंगुइन सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो वर्ब रूट फॉर्म में है. क्लियर? सो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है, दैट इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. और इसमें अगर आपका बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन लाइक ही, शी, इट है, तो हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस ई एस ऐड करेंगे. वेर एज अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज लिखेंगे. क्लियर? नाउ लेट्स लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स टू गेट द कंसेप्ट क्लियर. नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज water boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ये फर्स्ट एग्जाम्पल है. ठीक है. नाउ दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट. ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और ये आपको बेटा पता होना चाहिए कि जितने भी परमानेंट ट्रुथ्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, वो हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. सब्जेक्ट क्या है? वाटर. अब वाटर अनकाउंटेबल है, उनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ये हमको पता है. ठीक है ना. अब वाटर के साथ हम हमेशा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे? और मैं यहाँ पे देखो बॉयल में एस लगा है, रूट फॉर्म है बॉयल, उसमें एस लगा है. सो ये आपको बेटा पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज किया जाता है? व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट्स, परमानेंट ट्रुथ्स और प्रोवर्ब्स. नाउ द सेकंड सेंटेंस इज द अर्थ revolves
round the sun. The earth revolves round the sun. Again children, this is a permanent truth. ये एक परमानेंट ट्रुथ है, सच्चाई है. जैसे फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एकदम परमानेंट ट्रुथ है. तो ये सारे परमानेंट ट्रुथ है, साइंटिफिक फैक्ट है. ये हम किस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. यहाँ सब्जेक्ट क्या है? अर्थ है. और यहाँ पे देखो अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब में क्या ऐड किया है? एस ऐड किया. दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस ऐड करना है, और अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे एस नहीं, दोनों में से एक ही जगह एस ऐड करना है. यहाँ एस है तो यहाँ रूट फॉर्म, ठीक है. यहाँ एस नहीं है तो यहाँ आपको एस ऐड करना है. यहाँ अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे रिवॉल्व रूट फॉर्म में एस ऐड किया. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ प्रोवर्ब. Too many cooks spoil the broth. ये एक प्रॉवर्ब है ना, कि बहुत सारे लोग जब कोई काम करते हैं तो वो खराब हो जाता है. सो यहाँ पे अब आप देखो सब्जेक्ट क्या है ना. इसमें वाटर सब्जेक्ट था, इसमें दी अर्थ सब्जेक्ट है, और इसमें सब्जेक्ट है टू मैनी कुक्स, प्लूरल सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. सो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ. क्लियर? नाउ वन अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ अ हैबिचुअल फैक्ट. हमारी जो हैबिट होती है, आई नेवर टेल अ लाई. क्लियर? ये एक हैबिट है, ये हैबिचुअल फैक्ट है. अब सब्जेक्ट क्या है? आई. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ब रूट फॉर्म में. जब भी हमारा सब्जेक्ट आई होगा, यू होगा, वी होगा, दे होगा, हम हमेशा रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. क्लियर? ये ध्यान रखो. देन द लास्ट एग्जाम्पल आई टेक. जो एक्शंस हम हमेशा करते हैं, विच आर रिपीटेड ऑफन. फॉर एग्जाम्पल, माई मॉम trims my nails every week. My mom trims my nails every week. सब्जेक्ट क्या है? my mom. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे रूट फॉर्म में क्या लगा है? एस लगा है. क्लियर? एंड दिस इज एन एक्शन विच इज डन रिपीटेडली, है ना. जो एक्शन हम रिपीटेडली करते हैं वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं. सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हमेशा रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. All of you, please turn to page number 48, exercise 1. Exercise 1 is fill in the blanks with simple present form of the
given verbs. ओके, अब एक पूरा पैराग्राफ दिया है और उसमें ब्रैकेट में verbs के फॉर्म दिए. Now according to the subject we need to fill in the verbs in simple present tense. So let's start. Chinese New Year dash, ब्रैकेट में क्या दिया है, बी, often called Chinese lunar means related to the moon, New Year. ये फर्स्ट सेंटेंस. अब बेटा ये बी, जब भी बी दिया है दैट मीन्स हमको इज या आर भरना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सब्जेक्ट क्या है, चाइनीज न्यू ईयर. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग. सो वी विल राइट ओवर हियर इज. Chinese New Year is often called Chinese Lunar New Year. Clear? B फॉर्म का मतलब होता है वर्ब में प्रेजेंट टेंस में दैट हमको इज या आर. पास्ट में होगा तो वॉज या वर. क्लियर? देन इट डैश एंड इन ब्रैकेट इट इज रिटन मार्क the end of the winter season. Now subject क्या है, it. it सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हम क्या करेंगे, मार्क में एस ऐड करेंगे. It marks the end of the winter season. Now, the festival, next sentence. The festival dash and in the bracket it is written begin on the first day of the first month in the traditional Chinese calendar. And dash end with lantern festival on the 15th day. Okay. Now look over here. The festival. Subject है. That means singular subject है. So we will write the root form and add S. The festival begins on the first day of the first month in the traditional Chinese calendar, and also now again यही subject है, तो यहाँ भी हम end में S लगाएंगे क्योंकि हमारा subject singular है. Clear? And ends with the lantern festival on the 15th day. Clear? Then the next line. Every family dash and in the bracket it is written clean
the house to sweep away ill fortune. Now, every family subject, that means singular subject. तो हम क्या करेंगे? Clean में S लगा देंगे. So, every family cleans the house to sweep away ill fortune. I hope till here all of you have written. So now I am going to erase and continue the remaining paragraph. Fine? Okay. Now, they dash, and the bracket it is written burst. Firecrackers पटाखों को बोलते हैं. At night. Now, look at this sentence. Subject क्या है? They. Plural pronoun है. So we will write the verb in the root form as it is. They burst firecrackers at night. Now, the next line. Children dash greet their parents by wishing them a happy and healthy New Year and dash receive, it is written in the bracket, money in red envelopes. Clear? So, look at the second line. Children. Now the subject is children. So we will be writing the root form of the verb. Sub plural होगा तो root form of the verb as it is लिखना. Greet their parents by wishing them a happy and healthy new year. And who received the money? Again the subject is same children. So we will write receive in the root form only. क्योंकि subject children है which is plural. Then red and golden colors dash, again B form of the word we need to write, predominant in Chinese, in most Chinese, sorry, in most Chinese decorations as red
dash, and in the bracket it is written symbolize happiness and gold. Again, in the bracket it is written symbolize wealth. Now, look at this sentence. Red and golden colors. Here we are talking about two colors. So subject is plural. तो यहाँ पे शुरू में फर्स्ट लाइन में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो हमने इस किया, बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट टू कलर्स, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर यूज करेंगे। रेड एंड गोल्डन कलर्स आर प्रीडोमिनेंट इन मोस्ट चाइनीज डेकोरेशंस एज रेड। अब यहाँ पे रेड, वी आर टॉकिंग अबाउट वन कलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सो वी विल राइट सिंबलाइजेस, एस लगा देंगे। हैप्पीनेस एंड गोल्ड, अगेन गोल्ड वन कलर, सो हम इसमें भी एस लगा देंगे एंड में। सिंबलाइजेस वेल्थ, या देन पीपल also dash, and in the bracket it is written participate in a traditional parade to exhibit their culture. Exhibit means showcase. Now, people also, subject क्या है? People है, plural है, तो participate as it is लिखेंगे। Clear? So people also participate in a traditional parade to exhibit their culture. Now, the last line, they dash, bracket it is written wish, subject they है, तो that means हमें root form of the verb as it is में लिखना है। So they wish each other by saying Go Nian Hao. Which dash, and in the bracket it is written mean Happy New Year. Now, यहाँ पे सब्जेक्ट दे है ना, दे विश ईच अदर बाय सेइंग गो नियन हाउ, विच, तो यहाँ पे बाय सेइंग गो नियन हाउ विच मीन्स, जिसका मतलब, किसका मतलब, हम गो नियन हाउ का मतलब। सो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो हम यहाँ पे एस लगाया हमने, which means Happy New Year. So I hope now you all have done exercise 1, keeping in mind कि जहां भी बी फॉर्म लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दैट मीन्स हमको उसमें इज या आर में से एक डिपेंडिंग अपॉन दी सब्जेक्ट हमें लिखना है।
इस कब लिखेंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और आर कब लिखेंगे? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझना, व्हाट इज दैट? इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, आप रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आप रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या ईएस डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब यू विल ऐड, एंड फॉर दैट you need to be thorough with the forms of verb given in your unit 10 verbs. उसमें जो फर्स्ट फॉर्म है वो रूट फॉर्म है, और वो ही हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. I'll be continuing the remaining exercise in my next video. Thank you students. Good day ahead.